Good evening, sir. Good evening, Prince. Sir, today my topic is elaborate the ethics of artificial Yeah, intelligence. you want me to elaborate the ethics of AI, I mean artificial intelligence. Intelligence. AI ethics is a set of moral rules and guiding values focusing on fairness, transparency, and accountability. I tell you, three words define the ethics of artificial intelligence. Ask what are they, sir? What are they, sir? Fairness, fairness, What is the meaning yeah, of him? being fair, I mean impartial, no partiality, and being always right. Second thing, guiding values, transparency. It should be open to all. There should be no hidden कोई छिपाना नहीं. There should not be any hidden things. Fairness, transparency, and accountability, responsibility. AI must be accountable to ensure smart computer system and without harming the people. This is very good, I mean, question that AI ethics emphasizes on three core values. Number one is that it should be accountable to the fair, I mean, interpretation of the facts, fair answer to the question, fair interpretation up to the facts, and most importantly, it should be very accountable. It should be responsible for any kind of answer or any kind of discussion or any kind of system that it delivers on internet without harming the people. Now recently there have been several cases of manipulation by AI. I ask, sir, what is it? What is this? AI has manipulated even the facts into fiction. फैक्ट्स को भी काल्पनिक बना देता है. और जैसे मान लीजिए आप एक क्वेश्चन पूछिएगा तो जो क्वेश्चन पूछिएगा उसका आंसर देगा, लेकिन क्यों है ये वाई का आंसर नहीं देता है. तो देखिए, दिस इज नॉट अकाउंटेबिलिटी. आप ये भी बताइए व्हाई इट इज दैट. Yes, sir. Why? अगर Why? आप नहीं माने, जैसे आप एआई का क्या काम है, जैसे आप मतलब पूछिएगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस importance ऑफ of AI. एजुकेशन, तो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस देगा, लेकिन व्हाई एजुकेशन इज being important for the society, it will not give. Education is important because if you are not educated, you will not get job, you will not be self dependent, you will not be self reliant, or you will not have progress. अब देखिए प्रॉब्लम क्या आता है. Ask, sir, what are the core values Yes, sir. of What is AI the? ethics? Yes, sir. What is the core there value are of there AI? are certain core values. Number one is fairness. Now you ask, what does fairness What is actually work mean here? or work in AI? हाँ, fairness means system must treat all people equally and avoid discrimination. देखिए एआई भी आजकल डिस्क्रिमिनेट करता है. बताते हैं कैसे. जैसे देखिए, इलाइट यूजर्स होते हैं, इलीट यूजर्स. इलीट यूजर्स मीन्स टॉप यूजर्स. जैसे कोई अगर एग्जीक्यूटिव क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए कोई कंपनी का हेड पूछता है, तो द आंसर विल बी अ बिट डिफरेंट. अगर आप पूछते हैं एन एम्प्लॉय, योर आंसर विल बी डिफरेंट. इस सेम क्वेश्चन का आंसर ये डिस्क्रिमिनेट करके एआई देता है. क्यों देता है, व्हाई? देखिए, वो स्टेटस पूछता है कि आर यू इन द स्टेटस ऑफ. पहले आपको अपना स्टेटस भरना होगा, वेदर यू आर स्टूडेंट, वेदर यू आर एन एम्प्लॉय. इफ यू आर एन एम्प्लॉय, वेदर यू आर एन एग्जीक्यूटिव, और वेदर यू आर जस्ट एम्प्लॉय. अब ये बताइए, डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? एआई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज योर स्टेटस, आप अपना स्टेटस बताइए, तब उसी के अनुसार क्वेश्चन आंसर देंगे. अच्छा. तो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन. Discrimination. Yes, sir. अब देखिए फेयरनेस का मतलब हुआ द सिस्टम मस्ट ट्रीट ऑल पीपल इक्वली एंड अवॉइड डिस्क्रिमिनेशन. ऐसा नहीं है. दूसरा बात, ट्रांसपेरेंसी. यूजर्स हैव राइट टू नो व्हाई एंड हाउ ए सिस्टम मेक्स ए चॉइस. जैसे आप कोई चॉइस लेना चाहते हैं, आपको सेंटर ने जॉब दिया, you want to go for HR or you want to go for, let us say, job management, or you want to go for work management, WMA, work management association, or you want to go for HR, human recruitment cell. तो अगर आप AI से पूछिएगा कि what should I go for choice, तो वो आपको ये नहीं बताएगा, वो आपको बताएगा कि both are equally good. तो ये ट्रांसपेरेंसी कहाँ से हुआ, बताइए? माने HR इज ऑल्सो गुड एंड सो फार एज दैट इज ऑल्सो गुड, यानी दोनों सही है. ये HR में भी आपको उतना ही स्कोप है और उसमें भी उतना ही स्कोप है. HR की भी बड़ाई कर देगा और उसका भी बड़ाई.
तो ये तो ट्रांसपेरेंसी नहीं ना हुआ। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि विच वन इज बेटर, एचआर इज बेटर और जॉब मैनेजमेंट एसोसिएशन इज बेटर, विच वन इज बेटर? तो Job- आपको ये आंसर, और क्यों, व्हाई इट इज बेटर? मान लीजिए आपने दिया कि ठीक है एचआर इज बेटर, रिक्रूटमेंट सेल इज बेटर, Yes, sir. आपको आपको लोगों से पब्लिक रिलेशंस और आप अपनी क्षमता को लोगों को जज करने में बिताएंगे, तो इट इज गुड। लेकिन अभी देखिए ट्रांसपेरेंसी जहां तक आता है, यूजर्स हैव राइट टू नो व्हाई एंड हाउ सिस्टम मेक्स ए चॉइस। जैसे सिस्टम से आप कोई क्वेश्चन पूछिए तो वो एक चॉइस दिया, मान लीजिए 5 इंस्टीट्यूशन का आपने नाम दिया, तो वो एक चॉइस दिया, क्यों दिया, हाउ, तो हाउ और व्हाई का आंसर तो आई देता नहीं है। Yes, sir. तो इसका मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। Hmm. ये देना चाहिए कि व्हाई आईआईटी मुंबई इज Mumbai बेटर is देन better than आईआईटी IIT कानपुर। Kanpur. It will never give, only it will give that IIT Mumbai is better Better than than IIT IIT Kanpur, Kanpur. but it will not give तो choice की ट्रांसपेरेंसी के बारे में how and why this choice is being made by the AI। AI से आप क्वेश्चन पूछे कि which institution I should join, so should I join IIT Mumbai or IIT IIT Kanpur? Kanpur. The AI will answer you IIT Mumbai according to the rank। Rank. Rank is high, उसका ये 1 में है, इसका 2 में है या 3 में है। लेकिन ये नहीं देगा कि why and how, then there is no transparency। इसका मतलब AI हाइपोक्रेसी पर चल रहा है। दूसरी बात देखिए, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है कि जो डेवलपर्स हैं, जिन्होंने एआई को डेवलप किया है और जो उसके ओनर्स हैं, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि वट एवर आउटपुट आई एम गिविंग इट इज अकॉर्डिंग टू द वेलनेस ऑफ द पीपल। वेलनेस के पीपल के वेलनेस के खिलाफ नहीं है। आपको ये अकाउंटेबिलिटी लेना होगा कि कंज्यूमर जो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, द यूजर्स आर कंज्यूमर्स। आप मान लीजिए एआई यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं, तो वी आर कंज्यूमर्स। तो हमारा इंटरेस्ट कौन देखेगा? डेवलपर देखेंगे, जो एआई डेवलपर से वो देखेंगे कि कोई दूसरा कोई देखेगा? बोलिए। AI develop. तो AI developers must take the accountability that they should always be responsible for any output that is given by AI. That is given by AI. If a wrong output is given by AI, who will be responsible? आप पूछिए मुझसे। Yes, sir, The who- developers will be developers responsible. is- The developers never take the accountability। तो ये भी एक बात। दूसरी बात है कि प्राइवेसी नहीं है, पर्सनल प्राइवेसी नहीं है एआई में। देखिए सबसे बड़ा, द ग्रेटेस्ट फॉल्ट इन एआई इज दैट देयर इज नो पर्सनल प्राइवेसी। आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स वो डाटा ले लेता है, पर्सनल डिटेल्स आपके उसके पास चला गया। इट इज नेवर सेफ। वंस यू हैव फीड द पर्सनल डेटा टू एआई, इट इज ऑलवेज प्राइवेट। ये पब्लिक रहा ही नहीं, पर्सनल रहा ही नहीं, वो सारे लोगों को हैंडल करने के लिए दे देता है। यानी सबसे बड़ा थ्रेट क्या है कि आपने पर्सनल डेटा को सेफ रखने के लिए आप एक प्राइवेट बॉडी, जो एआई एक प्राइवेट बॉडी है, उसको हैंडल करने के लिए दे दिया और आपसे कंसेंट ले लिया कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीकेज ऑफ द डेटा। लीकेज ऑफ द Data. तो इंफॉर्मेशन तो लीक हो गया। Yes, sir. आपने पहले ही लिखवा लिया कि AI is not responsible, AI generated information is not responsible for leakage of the privacy, leakage of the Privacy. आपके हाथ में क्या रहा बताइए? What is in your hand? Last but not the least, सबसे बड़ी बात क्या है कि AI should reduces biasness, prevents unfair outcome, high stakes field like hiring, loan and healthcare and building trust। सबसे बड़ा काम एआई का होना चाहिए कि इट शुड बिल्ड ट्रस्ट, रेगुलर यूजर्स के लिए सेफ होना चाहिए। इंटरेक्टिंग विथ ऑटोमेटिक सर्विसेज, जैसे मान लीजिए हम ऑटोमेटिक सर्विसेज से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आई मस्ट बी गिवन द ट्रस्ट दैट आई विल बी हेल्प, I will not be befooled, or if I am interacting with automated services, I will be given help by AI। It should prevent harm, it should stop unintended negative impact of job, society and human rights। देखिए AI दो डेटा लीक करता है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इट लीक्स द डेटा। आप तो एआई के खुद स्टूडेंट Yes, sir, leaks the- आप प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर सकते। वंस यू हैव फेड द इंफॉर्मेशन ऑन एआई, योर प्राइवेसी, योर पर्सनल डेटा विल नॉट बी सेफ। और क्योंकि ये प्राइवेटली हैंडल्ड होता है, एआई इज नॉट गवर्नमेंट बॉडी, आप समझ लीजिए। Yes, sir. इट इज ए प्राइवेट डेवलपर्स एजेंसी विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट,
कि आप ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। इट कैनॉट बिल्ड ट्रस्ट एंड इट कैनॉट प्रिवेंट द हार्म। ये सारी चीज इसके इथिक्स में आती है। जबकि इथिक्स कहता है, देखिए व्हाट डज द इथिक्स से, दैट नो प्राइवेसी शुड बी इंटरप्टेड। आपकी प्राइवेसी को इंटैक्ट रखना है। एआई अकाउंटेबिलिटी है कि डेवलपर्स ये इंश्योर करें, डेवलपर्स मस्ट इंश्योर दैट एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ information the AI is displaying must be with the consent of the consumer। आप कंज्यूमर हैं, आपके बिना इजाजत का कोई भी चीज वो नहीं करे। एम आई राइट? Right, sir. जैसे मान लीजिए हमने अपना प्रोफाइल एआई जनरेटेड दे दिया, उसमें एडिट करके कुछ और जोड़ देना बिना मेरे कंसेंट का, या कुछ उसमें से एडिट करके घटा देना, दिस इज क्राइम और नॉट? टेल मी। Crime. हमने जो एआई जनरेटेड प्रोफाइल अपना दिया एज ए लेक्चरर, एज ए टीचर, तो मेरे वाला में आपने ऐड क्यों किया और आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दिया, या आपने कोई चीज उसमें से रिड्यूस कर दिया अपनी सुविधा के अनुसार बिना मेरे कंसेंट के। This Am I is- right? this is अब a आप crime. क्वेश्चन पूछिए। नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन। Yes, sir. दिस इज द बिगेस्ट इथिकल प्रॉब्लम। Sir, can AI replace human jobs? Is देखिए, it एआई इज ऑलरेडी रिप्लेसिंग ह्यूमन जॉब। मैं बता रहा हूं आपको, जहां 100 एम्प्लॉय काम करते थे डेटा सिस्टम पर, वहां अब 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। आर यू श्योर, आर यू अवेयर ऑफ दिस फैक्ट और नॉट? ये आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, अभी ही हो रहा है। अभी तो 10 साल बाद क्या होगा आई डोंट नो। आप इंजीनियर हैं, आप जानते होंगे, बट आई एम अफ्रेड। अभी क्या है, जैसे सिस्टम पर 100 कंप्यूटर एक साथ था, अभी जानते हैं कोलैबोरेट करके 5 कंप्यूटर 100 कंप्यूटर का काम कर रहा है। यानी कितना आदमी कम हो गया? 90 आदमी। 5 कंप्यूटर कंबाइंड करके द होल वर्क ऑफ द होल कंपनी इज बीइंग डन बाय 5 कंप्यूटर्स। एक छोटा सा ऑफिस में 5 कंप्यूटर को एक साथ कंबाइन कर दिया एआई से, एक मैंने नेटवर्क से दूसरा को कनेक्ट कर दिया। कनेक्टिविटी इतना फास्ट है कि वो पूरे वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन 5 ही सिस्टम, डेटा सिस्टम पर लोड कर दिया। समझ रहे हैं? Yes, sir. ओवरलोडिंग ऑफ डेटा ये कर रहा है, जिससे कि आदमी की जरूरत कम हो रही है। मैंने इट इज रिप्लेसिंग ह्यूमन बीइंग। तो आने वाले दिनों में इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ sir. यस। Sir, what is the importance of AI? एआई, तो आप तो इंजीनियर है, आपको पता No, है no, कि sir. एआई इज मेकिंग द टास्क इजियर। Sir, what are the ethical एआई issues इज to AI? द फास्टेस्ट हेल्पर ऑफ डेटा सिस्टम। जैसे कंप्यूटर भी आपको हेल्प करता है, गूगल भी हेल्प करता है, लेकिन गूगल से भी ज्यादा फास्ट और ये मान के चलिए, और कॉम्पैक्ट, फास्ट और कॉम्पैक्ट। एक्यूरेट तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब गूगल मिस्टेक कर सकता है तो एआई भी करेगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि गूगल से ज्यादा कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन एआई देता है, समझे ना? और एआई बहुत ब्रीफ में बहुत सारी चीज को इनकॉर्पोरेट करता है। ये छोटा सा ब्रीफ में, एक छोटा सा टैबलेट में पूरा वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन एआई जनरेट कर देता है, जबकि ऐसा नहीं था। समझे ना? एआई जनरेटेड चिप्स जो आने लगे, जानते हैं मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर चिप्स आर नाउ एआई जनरेटेड। समझ रहे हैं ना? वो आपको ये भी पता कर लेंगे कि आप खाना खा रहे हैं कि बाथरूम में। आप बताइए, इज इट डेंजरस और नॉट? Dangerous, sir. क्रिमिनल्स इसका फायदा उठा रहे हैं, Yes, sir. और उनको पता चल जा रहा है। क्रिमिनल्स आर एबल टू ट्रैक द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल एंड द प्लेस ऑफ द पीपल, और ये इट इज नॉट सेफ। तो एक जगह ये काम को आसान कर रहा था, दूसरी जगह थ्रेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, what is the ethical issue of artificial intelligence? हाँ, इथिकल इशू इज दैट इट मस्ट टेक द अकाउंट। देखिए, द डेवलपर्स, ये तो एक प्राइवेट बॉडी है ना, एआई इज नॉट ए गवर्नमेंट बॉडी। तो जो डेवलपर्स हैं, जो एआई को डेवलप कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए थोड़ी देर के लिए, अगर गूगल ने फेसबुक और व्हाट्सएप को डेवलप किया, तो गूगल शुड टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट व्हाट्सएप शुड बी प्राइवेट। इसकी प्राइवेसी की सिक्योरिटी कौन देगा? गूगल देगा कि नहीं देगा? Google देगा, yes, sir. तो इसी तरह से अगर एआई डेवलपर्स जो है, जो कि एक प्राइवेट बॉडी है, अगर वो इंश्योर नहीं करती है कि कंज्यूमर की सारी जो दिक्कतें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम आउटपुट के लिए सिस्टम को ऑन किए, देखिए हमने कुछ प्रोजेक्ट के लिए हम कुछ आउटपुट चाह रहे हैं, ठीक है, हमने इनपुट डाला, एम आई राइट? हमने इनपुट डाला, हमें आउटपुट चाहिए। वो क्या कर रही है? आपको एकदम ब्रीफ में आउटपुट दे दी।
अब उसका पैर और टांग कहाँ है कुछ नहीं दिया, समझ रहे नहीं ना, सर। टेल और हेड कुछ नहीं पता है, द ओनली आउटपुट इज गिवन। अब वो कहाँ से आउटपुट दिया, उसका लिंक क्या है, सोर्स क्या है, वो नहीं दिया, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा बोलिए। अगर ये क्वेश्चन किया जाए, एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए एआई में आप एक हमसे क्वेश्चन कीजिए जो आप अपने एआई में यूज करते हैं, अभी आपको जो पढ़ाया गया उसी से क्वेश्चन कीजिए। जैसे आप एआई का यूज कहाँ करते हैं, आप अपने ही बताइए ना। मतलब जैसे कि मतलब किसी भी काम को अपना को मतलब शॉर्ट करने के लिए हाँ, एआई का यूज शॉर्ट करते नहीं हैं, करने के लिए, और टाइम बचाने के वही लिए, हाँ, मतलब टाइम को टाइम बचाने के कंज्यूम, लिए, हाँ, टाइम कंज्यूम के लिए, और और जैसे मेरा काम जैसे फास्ट हो, जल्दी हाँ हो, हाँ, तो और जैसे कि आप तुरंत आंसर मिल जाए। आंसर तो मिल जाएगा। देखिए जैसे आपने, आपको 100 क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वो 2 मिनट में मिल जाएगा। 2 मिनट में मिल मिल जाए, जाएगा। लेकिन ये आंसर को वो एक्सप्लेन नहीं ना कर रहा है, आप नहीं समझ रहे। गूगल एक्सप्लेन्स द आंसर, हाँ, वो एआई केवल आपको सटीक आंसर दे सटीक देगा। आंसर दे रहा है तो सर। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपके काम को आसान कर रहा है, हम्म। अगर उसमें कोई डिमेरिट आ गया, कोई गलती आ गई, क्यों, अगर ऐसा मान हम जानना चाहते हैं कि व्हाई दिस इज कोई साइंटिफिक क्वेश्चन, साइंटिफिक टेम्परामेंट को तो एआई डील नहीं ना कर रहा है, नहीं नहीं। वो तो केवल आंसर देगा। जैसे देगा। मान लीजिए बोले H2O, तो बोला कि H2O का काम है, इट इज वाटर, It is water. इट इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल। ये नहीं बताएगा कि व्हाई हाइड्रोजन इज Combined to oxygen. combined oxygen Oxygen, in one atom, white atom. or it will never explain that it is a compound which is neutral compound। Neutral ये compound. कभी नहीं देगा कि वाटर इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, वो केवल देगा कि H2 इज वाटर। अब इतना आप छोटा आंसर लेकर के, तो आपका तो साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म हो गया। Yes, sir. तो इट इज डिस्ट्रॉइंग द साइंटिफिक टेम्परामेंट। कुछ दिन के बाद मेमोरी भी, एआई के कारण मेमोरी रिटेंशन, बच्चे लोग अब सोचने का- सब चीज पर डिपेंड हो जाएगा एआई पर, AI तो वो पर। अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे, मतलब सोचने का क्षमता दिमाग कम डल जाएगा। हो जाएगा। Yes, sir. और मेमोरी रिटेंशन जीरो होते जा रहा है डे बाय डे। Yes, sir. और ये कभी ऐसा भी हो सकता This is है, a very big problem. हाँ, कि आप कुछ जैसे कम एज में ही लोग भूलना शुरू कर देगा, ऐसा हो रहा है। डिमेंशिया उसको कहा जाता है। Yes, sir. द प्रॉब्लम ऑफ डिमेंशिया विल बी ऑकरिंग वेरी सून अमंग द यूथ, जो कि एक एज पर होता था कि आदमी भूलता था। अब वो काम करने वाले लोग कंप्यूटर पर, वो सारा यदि उनके पास जो भी होता तुरंत एआई से पूछेंगे कि हमने कल क्या फिट किया था, क्या क्या वर्क किया था। व्हाई? इतना भी आपके पास दिमाग है, इतना साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है कि आप सब बात के लिए एआई पर डिपेंड कीजिएगा। सो ओवर डिपेंडेंस और ओवरलोडेड हो जा रहा है ना, ये एट्रोफी, देखिए इसे कहते हैं काइंड ऑफ एट्रोफी, न्यूरल एट्रोफी। न्यूरल समझते हैं, ब्रेन को आप कम से कम काम कीजिएगा तब ब्रेन आपका डल होते जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा। तो न्यूरल एट्रोफी की शिकायत हो रही है बिकॉज ऑफ एआई, बिकॉज ऑफ AI. ओवर यूज ऑफ एआई, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, तुरंत छोटा छोटा आंसर देकर, अब छोटी बात के लिए भी आप एआई, क्वेश्चन बनाने के लिए एआई पर आप डिपेंड हो रहा है, आप आंसर खोज रहे हैं एआई से। और तो आप आपका ना अपना स्किल क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू योर स्किल। और जैसे मान लीजिए अभी आप थर्ड ईयर तो एआई का अब क्या एप्लीकेशन सिखाया जाएगा। अभी तो ऐसा कुछ मतलब एप्लीकेशन नहीं, सिखा जैसे चुका मान गया, लीजिए हम पावर करते पॉइंट हैं पे, किसी ऑफिस पाइथन में, पे को, सुनिए, मतलब कोड को, पाइथन में मान या मान लीजिए जैसे कोई कोड कर रहे हैं तो कोड हाँ, तो मतलब कोडिंग में, जैसे तो कोडिंग कर इसलिए रहे हैं हम एआई का यूज करके कर हाँ, सकते तो हैं। ठीक है, तो कोडिंग फास्ट होता है हम जानते हैं, लेकिन वही कोडिंग आप पहले एआई जब नहीं था तो कर लेते थे कि नहीं कर लेते, थोड़ा टफ होता था, टफ होता था, अपना टाइम लगता था, ब्रेन एक्सरसाइज होता था हाँ, नहीं, हाँ। अब तो वो भी नहीं हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। एआई इथिक्स तो बहुत काम करता है, डेवलपर्स को अकाउंटेबिलिटी लेना होगा, डेवलपर मस्ट टेक द सर, अकाउंटेबिलिटी। शुड एआई बी अलाउड टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन विदाउट ह्यूमन supervision? No, I will never suggest that AI should take any decision, because decision making is a logical work where AI has no role. लॉजिकल, देखिए साइंटिफिक टेम्परामेंट, कोई भी डिसीजन लेना ह्यूमन ब्रेन का काम है, समझ रहे हैं ना, और ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस नहीं कर सकता एआई, हम आपको लिख दे रहे हैं। कोई कितना भी डेवलप हो जाए कंप्यूटर, एआई इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमन ब्रेन, आपको मैं लिख के देता हूं। कोई जो मेडिसिन डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर देगा, जो पढ़ लिख के आया है, उसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकता एआई, आई एम टेलिंग यू। उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। अगर एज आप एक डॉक्टर हैं, आपने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया या कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रिस्क्राइब किया और उसका रिजल्ट आपने जो स्टडी करके बताया, उसको डायग्नोस करके, वो एआई केवल इतना करेगा कि ब्रीफ कर देगा, छोटा कर देगा और शॉर्ट में आंसर देगा। लेकिन एआई आपको कभी भी डायग्नोस्टिक अप्रोच में
आपको मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। एआई केवल जल्दी में बता देगा कि आपको ये डिजीज है, समझे ना। Yes, sir. लेकिन क्यों ये डिजीज है, उसका कहां से जड़ है, वो एआई के बस में नहीं है। इसलिए कभी भी डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बी लेफ्ट ऑन एआई। मैं बता रहा हूं, जिस दिन ये आप कंप्यूटर ऑपरेटर लोग हैं, जो इंजीनियर लोग ये करना शुरू कर देगा, उस दिन देख लीजिएगा पूरा एंटायर ब्रेन उनका जो है ना ट्रैफिकिंग, ब्रेन ट्रैफिकिंग हो जाएगा। ब्रेन ट्रैफिकिंग होने से क्या होगा कि आपके ब्रेन पर पूरा एआई का कंट्रोल हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू एक्सरसाइज योर ब्रेन, समझ रहे हैं। Yes, sir. आपको कोई हैक कर ले, आपके ब्रेन को कोई हैक कर ले, अगर एआई हैक कर ले तो आप तो उसका अधीन हो जाइएगा ना जी। Yes, sir. हो जाएंगे. तो आप बीमार हो जाइएगा, यू विल बी टेक्नोलॉजिकली सिक। Sick. Yes, Am sir. I right? Right, sir. वैसा नहीं होना चाहिए। एनी अदर क्वेश्चन? No, sir. थैंक यू। Thank you, sir. गलत